हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीवी शो। आज हम एक तेलंगाना फोक सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। गाने का टाइटल है पेद्दी रेड्डी। इसमें नागदुर्गा और राज नरेंद्र है। चाइल्ड आर्टिस्ट रुचिता एंड यशवंत नंदन। इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर है मदीन एसके, सिंगर है ममता रमेश, लिरिक्स बाय बुलेट बंडी लक्ष्मण। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपना रिएक्शन। फोक सॉन्ग्स में विलेज का बहुत अच्छी तरह से दिखाते हैं यार। ड्रोन शॉट्स हो जाए, ग्रीनरी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। పేరుగల్ల పెద్దిరెడ్డి బిడ్డనో ఓ రామసిలుక గౌరాలే నన్ను చేసి పెంచనే ఓ రామసిలుక मेरे डैड का नाम పేరుగల్ల పెద్దిరెడ్డి బిడ్డనో ఓ రామసిలుక గౌరాలే నన్ను చేసి పెంచనే ఓ రామసిలుక కోరామిసాలు దువ్వుతూ మా నాయన కోరొక్క కూత పెడితేనే ఓ నాయన పెద్ద అప్పులంత సప్పుడే మా నాయన తప్పే ఒప్పేసుకుంటారే ఊరంతా పెద్దోడు నా ముందు పస్సోడు పస్సోడు పేరుగల్ల పెద్దిరెడ్డి బిడ్డనో ఓ రామసిలుక గౌరాలే నన్ను చేసి పెంచనే ఓ రామసిలుక लॉन्ग शॉट अच्छा है यार, पानी में रिफ्लेक्शंस दिखना। బిడ్డనో ఓ రామసిలుక గౌరాలే నన్ను చేసి పెంచనే ఓ రామసిలుక ये शादी से पहले है क्या? నేను పుట్టినప్పుడు మా నాయన నిండు అమాసనంటనే ఓ నాయన మా నాయన ముఖమప్పుడు మా నాయన పండు పున్నమంటనే ఓ నాయన నేను పుట్టినప్పుడు మా నాయన నిండు అమాసనంటనే ఓ నాయన మా నాయన ముఖమప్పుడు మా నాయన పండు పున్నమంటనే ఓ నాయన మా నాయన గుండె తొట్టేలా చేసి నన్ను ఊయల్ల ఊపెనంటనే పెరుగల్లా పెరుగల్లా పేరుగల్ల పెద్దిరెడ్డి బిడ్డనో ఓ రామసిలుక గౌరాలే నన్ను చేసి పెంచనే ఓ రామసిలుక పట్టా గొలుసులు తెచ్చనే ఓ నాయన పెట్టి మురిసిపోయనే మా నాయన పట్టు లంగాలు తెచ్చనే ఓ నాయన కట్టి మురిసిపోయనే మా నాయన పట్టా గొలుసులు తెచ్చనే ఓ నాయన పెట్టి మురిసిపోయనే మా నాయన పట్టు లంగాలు తెచ్చనే ఓ నాయన కట్టి మురిసిపోయనే మా నాయన మారాని నేనైతే గుర్రామె తానైనా భారాలు అన్ని మోసనే పేరుగల్లా పేరుగల్లా పేరుగల్ల పెద్దిరెడ్డి బిడ్డనో ఓ రామసిలుక గౌరాలే నన్ను చేసి పెంచనే ఓ రామసిలుక ఏడోళ్ళు చెప్పుకునేలా ఓ నాయన నా పెళ్లి చేసినాడులే మా నాయన కన్నీళ్లు దాచిగుండెలా ఓ నాయన అక్షింతలేసినాడులే మా నాయన ఏడోళ్ళు చెప్పుకునేలా ఓ నాయన నా పెళ్లి చేసినాడులే మా నాయన కన్నీళ్లు దాచిగుండెలా ఓ నాయన అక్షింతలేసినాడులే మా నాయన సిననాడు తన సంక దిగితే నేనేడ్చినట్టు ఏడ్చుకుంటా నా చేతులిడిసనే పెరుగల్లా పేరుగల్లా పేరుగల్ల పెద్దిరెడ్డి బిడ్డనో ఓ రామసిలుక గౌరాలే నన్ను చేసి పెంచనే ఓ రామసిలుక నేను లేని ఇంటిలో మా నాయన కునుకే లేక కంటిలో పండుకుండే గాఢ నిద్రలో మా నాయన బాయి గడ్డ మీది మట్టిలో కడుపార గన్నోడు నా కడుపులో పుడితే పెట్టుకుంటే ఆయన పేరునే పేరుగల్లా ఆయన పేరుగల్లా పెద్దిరెడ్డి బిడ్డనో ఓ రామసిలుక
Oh my God, I did not expect this kind of song यार. मैंने जब पेद्दी रेड्डी सॉन्ग सुना ना, मुझे लगा नॉर्मली जो अब तक मैं सुनते आई हूँ कुछ रोमांटिक सॉन्ग लाइक दो लवर्स के बीच में या फिर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में ऐसा होगा. बट स्टार्टिंग लाइन से मुझे पता चल गया था कि उनके डैड के बारे में. उनके डैड का नाम पेद्दी रेड्डी है एंड उनके डैड के बारे में बोलती रहती है कि बचपन से कैसे उनका रिलेशन रहा है. दैट वॉज सो ब्यूटिफुल यार. वाओ, दैट I don't know. But I don't know why I felt that it might be some kind of romantic song. But anyways, शायद मैंने आज तक जो भी folk songs देखे हैं उसी तरीके देख के आए हैं. So शायद my mind thought that way. But this song is something else यार. Whoa. The father's love towards his daughter and the daughter's love towards her father बहुत ही अच्छी तरीके से, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव बोलते हैं ना. पेरेंट्स का लव ही प्योरेस्ट फॉर्म होता है कि जो माँ देती है, जो बाप देते हैं, वो प्यार कोई और दे नहीं सकते हैं बोल के. यू नो, इट्स रिटन ऑन द स्टोन. कोई मिटा भी नहीं सकते. उस तरीके का प्यार होता है उनका. एंड मैंने रिसेंटली एक तेलुगु गाने के ऊपर याद किया था, सिम्हाराजी मूवी से, अम्मा आने पीछी. वो गाने में भी मुझे एक मदर का प्यार कैसे होता है अपने बच्चों के लिए, वो देखा हमने. आई वॉज सो इमोशनल ऑन दैट ऑल्सो. एंड इस सॉन्ग में, पेद्दी रेड्डी सॉन्ग में, इट्स लाइक फादर का लव कैसे होता है वो दिखाई दिया है. नॉट ओनली फादर्स लव, बेटी कितना प्यार करती है अपने डैड से. नॉर्मली बोलते हैं ना कि डैड जो भी फादर होते हैं उनकी बेटी पे ज़्यादा प्यार लुटाते हैं. लाइक बोलते हैं ना कि फादर अपने बच्चों को एक ही समान प्यार देते हैं, लाइक एक ही तरीके का प्यार देते हैं. बट दैट्स नॉट ट्रू. बिकॉज उनको बेटे को जितना प्यार देते हैं थोड़ा ज़्यादा बेटी को देते हैं, क्योंकि ही लाइक एवरी फादर हैज़ दैट सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट साइड. वो बेटी के लिए थोड़ा ज़्यादा फील करते हैं, बेटी के लिए थोड़ा ज़्यादा प्यार उनके मन में उभरता रहता है बेटे से ज़्यादा. बिकॉज लड़के हैं ना, उनको पता है कि वो खुद रह चुके हैं, गुजर चुके हैं उस टाइम से. तो उनको पता है कि कैसे मैनेज कर सकते हैं लड़के. बट लड़कियों का उनको ना लगता है कि कभी ना कभी हमको छोड़ के चली जाएगी, दूसरे घर जाएगी, उनका घर चिराग जलाने, ऐसा कुछ सोच के वो थोड़ा दे फील दैट आई माइट नॉट बी एबल टू लव हर ऑल द टाइम. सो एक सर्टन एज तक ही वो हमारे साथ रहेंगे बोल के उनको पहले ही पता चल जाता है बेटी का नाम सुनते ही. सो दैट्स वाई दे स्टार्ट टू गिव देम ऑल द लव. लाइक जो बाद में भी, शादी के बाद भी जो लव होता है वो ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं जब तक वो उनके साथ रहें. शादी के बाद भी उनको दिखता है बट एवरी डे उनके साथ नहीं रह पाते हैं, तो उनको पता नहीं चलता, उनके नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं. सो वेन एवर ही गेट्स द चांस ही जस्ट ट्राई टू शो इट मोर. लाइक वो बोलते हैं ना, लाइक कितनी भी छोटी प्रॉब्लम हो उनको बहुत ज़्यादा लाइक माइक्रोस्कोपिक व्यू में देख के उनको, नहीं यार ये बड़ी प्रॉब्लम है, उनके लिए सॉल्व करना ज़रूरी है बोल के. सो ही ट्रीट्स हिज डॉटर दैट वे, लाइक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं. और जितनी भी बड़ी हो जाए, उनकी शादी हो जाए, उनके बच्चे भी हो जाए, फिर भी उनके लिए प्रिंसेस ही रह जाती है. So that's the love a father can, father not only can, he will, he always gives to his daughter. एंड एक बेटी के लिए भी वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है कि ओपनली एक सर्टन एज के बाद बोलती नहीं है कि डैड मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ. बट इस गाने में जितना प्यार उन्होंने लिरिक्स के थ्रू बताया है कि बचपन से जितना भी आपने मेरे लिए किया है, वो मुझे हर एक चीज़ प्यारी है, वो मेमोरीज मेरे लिए बहुत प्यारे हैं उनके. लाइक जिस तरह से उन्होंने बचपन में उठाया था, वहाँ से लेकर उनको सुलाया था, उनके कंधों पे उठाया था, दिखाया था सब कुछ दुनिया. एंड जिस तरह से उनके साथ खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे, वो सब कुछ याद आ रहा था उनको. एंड उनके लिए नए नए कपड़े लेके आना, लाइक बहुत कॉस्टली कपड़े लेके आना, एंड पायल लेके आना, और पायल को पहना के खुद अपने हाथों से पहना के खुश होना, उनको नाचते हुए, पायल पहन के नाचते हुए देख के खुश होना. हर एक चीज़ वो उनको याद आ रही थी. आई वॉज थिंकिंग, जब वो बोल रही थी ना कि शादी के बाद ऐसे दूर हो गए, नींद नहीं आती, मुझे बहुत ही, आई वॉज ड्रेडिंग दैट मोमेंट कि नेक्स्ट क्या दिखाएंगे यार. उनके डैड कुछ लाइक, उनको डैड लाइक मेमोरीज में दिखा रहे हैं कि प्रेजेंट में नहीं दिखा रहे हैं कि क्या हो गया. आई वॉज थिंकिंग ये मोमेंट आएगा, एंड दैट केम. दैट वॉज द मोस्ट ड्रेडेड सेक्शन, आई कैन से दैट. मुझे लग रहा था कि
वही दिखाएंगे कि वो ही पास्ट वे बोल के, एंड नेक्स्ट सीन वही था कि वो उनके टोम के पास बैठ के, ग्रेव के पास बैठ के रो रही थी कि मेरे शादी के बाद उस घर में जहाँ मैंने पला बड़ा है आपको नींद नहीं आ रही थी और नींद में ही चले गए बोले। दैट वॉज द ब्रेकिंग मोमेंट। बट आई लाइक दैट लिरिक यार कि ये मीनिंग आ रहा था कि तुमने मुझे अपने पेट पे संभाल के मुझे बढ़ाया है, वैसे ही मैंने अपने पेट से तुमको निकाला है। लाइक शी गेव बर्थ टू ए बॉय एंड शी नेम्ड हर सन आफ्टर हर डैड, सो दैट वॉज वेरी वेरी स्वीट गेस्चर एंड ऑल्सो मेमोरेबल वन कि उनको हमेशा याद रखा जाता है। एक पिता का जो ड्यूटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्होंने जितना प्यार देना था, जितना सुख उनको देना था दे के चले गए। जाने के बाद भी बेटी को होता है कि मैंने उनके लिए कुछ किया नहीं है, मुझे भी उनको उतना ही प्यार देना था जितना उन्होंने बचपन से मुझे दिया है। सो इन द फॉर्म ऑफ हर सन शी इज ट्रीटिंग हिम एज हर डैड एंड गिविंग ऑल द लव टू हर सन। वो जो पिक्चराइज करने का विजुअली दिखाया उन्होंने, दैट वॉज सो गुड यार, बहुत अच्छा लगा। एंड शी वॉज ड्रेसिंग हिम इन दैट सेम वे। उनके डैड जिस तरह से वो कपड़े पहनते रहा उसी तरह के कपड़े पहना कर ऐसे ऐसे मूंछों को ताव देने का अच्छा था यार, वाओ। And every daughter feels that her dad is the one person who can love her unconditionally. So इसमें बहुत ही अच्छी तरह से लिरिक्स यार, लाइक वो लास्ट पार्ट यार जहाँ वो बोलती है ना कि ही पास्ट अवे बोल के, वहाँ बहुत इमोशनल फील हो रहा था यार। बट म्यूजिक वॉज गुड, द फ्रेमिंग वॉज गुड, नागा दुर्गा बहुत अच्छी तरह से कन्वे किया उन्होंने। वो डांस स्टेप जो सिग्नेचर स्टेप था वो अच्छा लग रहा था, सिंपल था बट ब्यूटीफुल लग रहा था। उनका डैड का जो कैरेक्टर है, मुझे उनका जो भी कुछ सीन्स में उन्होंने दिखाया है वो एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है। लाइक सच में एक फादर फिगर उनके साथ कर, उनके डैड ही है बोल के लग रहा था। लाइक उनकी आंखों में जिस तरह से वो प्राउडनेस, वो प्यार दिख रहा था ना, बहुत अच्छा था। आई डोंट नो इफ ही इज रियली हर फादर और जस्ट एन एक्टर। इफ ही इज एन एक्टर दैट ग्रेट एक्टिंग यार, बहुत अच्छा लगा। जब उनकी शादी हो रही थी उनकी आंखें लाल थी, जब वो बेटी को विदा करने की टाइम आया था ना, लाइक हग करके रो रहे थे, उस वक्त उनकी आंखें बहुत लाल थी। मुझे लग रहा था कि सच में एक बेटी को विदाई करने का उनको याद आके रो रहे हैं क्या, वो कैसा लग रहा था यार, वाओ, दैट वाज नाइस। एंड वो प्राउडनेस दिख रहा था, मूंछों को ताव देते हुए अपनी बेटी को नाचते हुए, वो खुशी, बहुत अच्छी तरह से उनके एक्सप्रेशन थे। आई लव दोज एक्सप्रेशंस, अच्छे लगे यार, वाह। आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।